ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੱਕ ਐਪ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਤਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ कि मेरे पिताजी एक बारी फिर चले गए, मेरी माँ एक बारी फिर चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब तक और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर जसविंदर निरुला, जिनकी आवाज़ का जादू तो हर तरफ छाया हुआ है। और चूंकि बात इंडस्ट्री की है, लता जी के जाने के बाद इंडस्ट्री ने बहुत कुछ खो दिया है, तो आज जसविंदर जी से हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी ये क्षति थी और लता जी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री में। तो जसविंदर जी, स्वागत है आपका पंजाब तक में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुसी सारे जो भी सुन रहे हो, मैनू देख रहे हो, सारिਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल। तो लता जी जैसे कहा गया कि एक फेज़ था लता जी से पहले और लता जी के बाद, कहते जैसे एसी बीसी और एसी था, तो एक बहुत बड़ी सदी का अंत हुआ लता जी के जाने के बाद। जो धरोहर छोड़ गई हैं वो हमारे लिए, तो वो अब आगे वाली जनरेशन्स के लिए एक बहुत बड़ी एक सौगात होगी। तो क्या लगता है लता जी का जाना कितनी बड़ी कमी है हमारी इंडस्ट्री के लिए? लता जी का जाना, लता जी ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਤਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। 4-5 ਦਿਨ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਔਰ ਚੂँकि ਜਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਗਏ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਗਏ ਤਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਚਮ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਦ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜੋ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਰਭ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਔਰ ਇਹ क्षति ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਲੈਸਨਸ ਛੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਮਜੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਣਗੇ। लता जी के गाने तो समुंदर थे, अगर हम एक गाने चलेंगे तो पूरी शाम हो जाएगी, लेकिन उस समुंदर में से कुछ मोती आपको लगता है विच वर द हॉलमार्क, द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ लता विच विल ऑलवेज बी क्लासिक? Oh my God, that's the most difficult questions you're asking because this one question I cannot answer. ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮਤਲਬ
ਹਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾ ਸੀ। ਭਲੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੇरो ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਭਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇ 9 ਚੂੜੀਆਂ ਸੀ, ਚੂੜੀ ਖਨਕੇਗੀ, ਬਿੰਦੀਆਂ ਚਮਕੇਗੀ। किस तरह के गाने उन्होंने गाए। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। सो इतना कमाल। सो जिन्ने भी उन्होंने गाणियां दी गल करिए, जड़े भी रंग दी गल करिए, हुण तक लास्ट तक जड़े गाते रहे, वो अपने आप विच ही हर गाने दा जड़ा है अपना ही मज़ा है, अपना ही रंग है। सो अज तुसीं मैनूं अगर कहो कि कोई गाना तुसीं गुनगुना के सुनाओ जड़ा उन्हां दा, ते बड़ा मुश्किल है कि मैं किहड़ा गाना चुना। सारे गाने बाकमाल सीगे। उन्होंने इतनी किस्मत वाले इंसान सनो, इन्ने वड्डे टैलेंट दे नाल उन्होंने इन्ना वड्डा भाग्य भी मिलिया सी। वो जड़ा भाग सी वो ऐ सी कि इन्ने वड्डे वड्डे इन्ने कमाल दे म्यूजिक डायरैक्टर्स नाल उन्होंने काम किया कि उन्होंने इन्नियां अच्छियां अच्छियां कंपोजिशनस गाण नूं मिलियां और उन्होंने कमाल की उन्होंने गा के। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट हर। बहुत कुछ है उन्होंने बारे गल करना, लेकिन लता जी ने हर भाषा में गाने गाए हैं। पंजाबी भाषा में उनके जो गाने हैं तो मुझे याद आता है वीर ज़ारा का जो उनका लोड़ी वाला गाना था गुरदास मान के साथ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत मतलब उनकी आवाज़ में ऐसा था कि वो ऐसा लगता तो पंजाबी बन गई। वो जो भाषा में गाती थी ढल जाती थी। तो पंजाबी म्यूज़िक असी सारे लव करते हैं, तो आजकल इतने हिट हैं। तो लता जी और पंजाबी गानों का आपको क्या लगता है कॉम्बिनेशन? आपको शायद पता नहीं है, बहुत साल पहले मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पिताजी HMV के म्यूज़िक डायरेक्टर थे और ही वाज दी म्यूज़िक डायरेक्टर एट दैट टाइम। तो उस वेले लता जी नू इनवाइट किया गया। मेरे को फोटोग्राफ्स अज भी हैगियां ने। लता जी और उषा जी आए दिल्ली। डैडी दे नाल एक प्रोजेक्ट होना सी गुरबाणी दा उन्हां दा, पर वो चूँकि साडे जड़ा स्टूडियो सी उहदे विच AC नहीं सी, बड़ा और बड़ी गर्मी सी। 3rd फ्लोर ते हुंदा सी दरियागंज विच ओ स्टूडियो। ते ओ उत्थे उन्होंने आके कहा कि नरूला भाई मैं यहाँ रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगी, यहाँ AC नहीं है, बहुत गर्मी है, आप बॉम्बे तशरीफ़ लाएं और बॉम्बे में ये प्रोजेक्ट करेंगे। सो बस इत्थे ही गल ख़त्म हो गई, क्योंकि उस तो बाद फिर डैडी दा जाना नहीं होया बॉम्बे और वो प्रोजेक्ट रह गया। बट उन्होंने बहुत कमाल दे शब्द गाए ने, बड़े कमाल दे पंजाबी गीत गाए ने। और पहले तो एवें हुंदा सी ना, कोई फिल्म किसी भी लैंग्वेज दी होवे, लता जी दा ते हुंदा ही सी गाना। लता जी दा, आशा जी दा, रफ़ी साहब दा गाने हुंदे सन। सो लता जी ने हर लैंग्वेज नू बड़ा कमाल नाल निभाया। तो उसी तरह उन्होंने पंजाबी, इवन कि तुहानू शायद पता नहीं तुसी सुनिया कि नहीं, पर उन्होंने गुरबाणी बड़ी सोहनी गाई है। बहुत ही मिठा उन्होंने। मैं पिछे 2-3 दिन पहले उन्होंने शब्द सुन रही सी, मिल मेरे प्रीतमा जियो। बहुत ही कमाल गाया उन्होंने और इन्ना खूबसूरत। वैसे भी रब दा मतलब रब दी आवाज़ सी वो, तो उन्होंने मूँह इन्ना मुखारबिंद तो इन्ना मिठा लगता है शब्द। तो यू नो उन्होंने बारे गल करनी जड़ी है वो बहुत कहते छोटा मुँह तो बड़ी गल है। तो जैसे जसमीन जी ने बहुत बड़ी बात बोली कि रब दी आवाज़ थी वो, तो वो आवाज़ हम सब बहुत मिस करेंगे। तो बस यादों में लता जी हैं। जसमीन जी थैंक यू सो मच, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल गल करके। थैंक यू सो मच।